خواتین حضرات خوش آمدید، آداب، گڈ مارننگ آپ سب کو ہماری طرف سے۔ آپ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام جے کے گلستان نیوز کی نشریات ہے اور نئی دلی اسٹوڈیو سے میں ہوں اشفاق گوہر، اور میرے ساتھ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون دے رہے ہیں میں ہوں آصف رشید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اس پروگرام میں مختلف موضوعات رہتے ہیں، ریاست کی ہر چھوٹی بڑی خبر سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں، ان خبروں سے متعلق تفصیلی رپورٹ اپنے رپورٹروں کے پاس بھی ہم فون لائن سے جڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تجزیہ نگاروں یا ارباب اقتدار سے وابستہ لوگوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں تاکہ اس خبر کی روح تک جایا جا سکے اور ایک عکاسی آپ تک کر سکے کہ کس طریقے کی حالات جو ہے وہ ریاست کے اندر بن رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج بھی اس پروگرام کو اسی طریقے سے چالو کیا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا، اور آج بھی مختلف موضوعات ہمارے سامنے رہیں گے۔ نئی دلی سے 2-3 خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں جو آج پورے دن ریاست کے اندر جو خبریں رہیں گی، جن میں ووٹر ڈے کے حوالے سے بات ہوگی۔ کل گورنر صاحب نے ریزرویشن کا اعلان کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ریزرویشن ہے اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ بات کریں گے ایک اور معاملے کی جو سرن کوٹ سے خبر آ رہی ہے کہ ترنگا نہیں لہرایا گیا، اور کیا وہ تفصیلی خبر ہے اور کیا اس کے بعد کا رد عمل ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے آج کے موضوعات میں رہیں گی، لیکن سب سے پہلے ذرا خبر بتاتے ہیں آپ کو نئی دلی سے، کیونکہ نئی دلی کے اندر نئے CBI چیف کی تقرری کے حوالے سے سلیکشن پینل کی میٹنگ جو تھی وہ کل وزیر اعظم کے ساتھ منعقد ہوئی تھی، جس میں چیف جسٹس آف انڈیا بھی موجود رہے اور حزب اختلاف کی طرف سے ملک ارجن کھرگے صاحب بھی وہاں پر رہے، تاکہ نئے CBI چیف کو تلاش کیا جائے اور نئے CBI چیف کی تقرری جو ہے وہ ممکن ہو سکے، کیونکہ رواں سال جنوری 10 تاریخ کو الوک ورما کو CBI کے چیف کی حیثیت سے ہٹایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی لگاتار سرکار نئے چہرے کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اور کل جو نام سامنے رکھے گئے تھے، ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے، جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، نہ تو چیف جسٹس آف انڈیا اس پورے عمل سے مطمئن نظر آئے، اور نہ ہی حزب اختلاف کے رہنما ملک ارجن کھرگے اس پورے عمل سے مطمئن نظر آئے، اور کہا کہ جو انفارمیشن دی گئی ہے ان افراد کی جنہیں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے نئے CBI چیف کے حوالے سے، وہ انسفیشینٹ تھی، اور اب مانا جا رہا ہے کہ اگلی میٹنگ جو ہے وزیر اعظم صاحب 31 تاریخ کو بلا سکتے ہیں، جس میں اگلے چیف کے تعین کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے پائے گی، اور یہ مانا جائے گا کہ اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اگلا چیف جو ہے CBI کا کون ہو سکتا ہے، یعنی اب جنوری 31 کو یہ میٹنگ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم دفتر سے اس طریقے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ذرا بات کریں چناؤں کے حوالے سے، کیونکہ آج نیشنل ووٹرز ڈے ہے، اور نیشنل ووٹرز ڈے سے قبل نئی دلی کی اگر ہم بات کریں تو لندن کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر خلاصے کافی زیادہ ہوئے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM جو بٹن دباتے ہم ہیں ووٹنگ کے دن، وہ EVM جو ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے، اور ہیکر نے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ ملک کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کے ساتھ رابطے بھی قائم کیے گئے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا انہیں مارا بھی گئے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے نہیں سچا ہے اس پر ایک الگ بحث ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان سبھی خبروں کو مسترد کر دیا تھا، اور نئی دلی کی ایک پولیس اسٹیشن کے اندر باضابطہ طور پر اس شخص کے خلاف FIR بھی درج کی تھی، جس نے لندن میں پریس کانفرنس کر کے یہ دعویٰ پیش کیا تھا کہ وہ دراصل ہندوستانی شہریت رکھنے والا آدمی ہے، اور شجاع اس کا نام ہے، اور کافی دیر تک وہ اس پروسیس کے ساتھ جڑا رہا۔ اس کے خلاف جہاں FIR درج کی، وہیں پر کل الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بات صاف کر دی گئی کہ جو لوگ بیلٹ پیپر کے ذریعے سے چناؤ کروانے کی باتیں کر رہے ہیں، دراصل وہ اپنی خامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن پوری طرح سے تیار ہے EVM کے ذریعے سے چناؤ کروانے کے لیے، کیونکہ EVM جو ہے جس طریقے سے EVM کے ذریعے سے چناؤ ہوتے ہیں اور جو EVM استعمال ہوتے ہیں وہ فلی جو ہے وہ سیکیور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم نامے کو دیکھتے ہوئے جب
हैकर जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के बुलाया गया था कि वो आके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की किसी भी मशीन को हैक कर सके, उन्होंने वो नहीं कर पाए और न ही वो आए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के अंदर इन सभी मशीनों को लेकर वो कितना साउंड है और वो कितना फुल प्रूफ है। और उन्होंने इस बात को दोहराया कि फिलहाल कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कमीशन के सामने कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो। ये तो दिल्ली की बात थी। लेकिन अगर आज हम वादी कश्मीर की बात करें और रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज 9th नेशनल वोटर डे पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के हर तहसील और सदर मकामात पर जहां इस तरीके की तकरीबों का एहतमाम होगा, जहां पर वोटरों को ये बताया जाएगा कि उनके हकूक क्या है और किस तरीके से वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से वो इंदराज कर सकते हैं, और अगर कोई गलती या शिकायत उन्हें है तो उसके हवाले से क्या हिकमत अमली को अडॉप्ट करना है। तो उस सिलसिले में आज जो आज का दिन रहता है ये एक अवेयरनेस के तौर भी रहता है और एक मोटिवेशन के तौर भी रहता है। और पूरे मुल्क में इस दिन को जो है वो काफी अहमियत से मनाया जाता है, क्योंकि साल 1950 में आज ही के दिन 25 जनवरी को ही आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया था और एक मजबूत इदारे की नींव जो है वो पड़ी थी। और उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत की जड़ों को और मजबूत किया। 1950 का दिन था आज ही जब इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और तब से लगातार इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी कार्रवाई करता रहा। लेकिन साल 2011 के बाद आज के दिन को वोटर्स डे के तौर पर लिया जा रहा है। और अगर हम आज के दिन की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जम्मू के कन्वेंशन हॉल कन्वेंशन सेंटर के अंदर मुनक्किद होगी, जहां पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम मेहमान खुसूसी की हैसियत से रहेंगे और तकरीबन 11 बजे ये जो प्रोग्राम है ये शुरू होगा। और हम कोशिश करेंगे कि बराह रास्त मनाजिर जो इस पूरे प्रोग्राम की है वो 11 बजे से हम आपको जम्मू से दिखाएंगे कि किस तरीके से नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और क्या कुछ वहां पर कहा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू के साथ साथ रियासत के हर जिले के अंदर भी आज तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं 9th नेशनल वोटर डे के हवाले से। तो 9th नेशनल वोटर्स डे आज पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज एक बड़ी तकरीब का इनेकाद होगा, जहां पे चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम और कई बड़े नाम जो इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और कल भी हमने देखा कि जिस तरीके से CEO जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं शैलेंद्र कुमार साहब, उनकी तरफ से नौजवानों को मैसेज दिया गया। और कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि इन 4 सालों में 3 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स जो हैं वो जुड़े हैं। और इस बार जो 18 साल से ज्यादा जिन लोगों के जो नए लोग होंगे 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र अब बन गई है, जिनको वोट का हक होगा, उनके लिए स्पेशली उन्होंने मैसेज दिया कि वो जाएं और अवेयर हो इस तरह के प्रोग्राम से और अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आज इस पे जगह जगह प्रोग्राम्स होंगे, राजौरी, पुंछ, वादी कश्मीर के तमाम अजला के साथ साथ श्रीनगर और जम्मू में भी। तो और इसके साथ साथ जो वोटर हेल्पलाइन 1950 के हवाले से लगातार बात हो रही थी कि क्या 1950 जो पूरे मुल्क के अंदर चलती है हेल्पलाइन, क्या उस फैसिलिटी को यहां पर दिया जाएगा। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से यह बात साफ की गई है कि सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर 1950 हेल्पलाइन जो है वो शुरू की जा सकती है। क्या कुछ उनका पैगाम था, जरा अपने नाजरीन को वो सुनाते हैं और उसके बाद बात करेंगे पहाड़ी कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि गवर्नर साहब ने रिजर्वेशन का तो ऐलान कर दिया है, लेकिन कल जो बड़ी बात कही है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने चुनावों के हवाले से और आज के दिन के हवाले से, जरा पहले वो सुन लेते हैं। चलिए, कुछ तकनीक की वजूहात की बिना पर वो प्ले तो नहीं हो पाएगा, हम आगे आपको वो जरूर सुनाएंगे। लेकिन बात अब करते हैं उस बड़े फैसले की जिसको लेकर पिछले कई सालों से लगातार हंगामा हो रहा था और लगातार मांग हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर जहां गुज़श्ता साल के दौरान जब PDP BJP हुकूमत मार्ज़ वजूद में थी, या उससे पहले भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, या उससे पहले भी जब मामलात चल रहे थे, तो लगातार पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके
جائز حقوق جو ہے وہ انہیں دیا جائے، اور ریزرویشن کے معاملے کو لے کر لگاتار اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ لیکن اب آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری نے جموں کشمیر کا دورہ کیا تھا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں اب پہاڑی سپیکنگ لوگ جو ہے، جو پہاڑی زبان بولتے لوگ ہیں، ان کے لیے ریزرویشن کا اعلان جو ہے وہ بہت جلد ہوگا۔ اور کل ہم نے دیکھا گورنر ستیہ پال ملک صاحب نے باضابطہ طور پر گورنر نے ریزرویشن ترمیمی بل 2014 کو منظوری دے دی ہے، اور پہاڑی طبقے کو اب ریزرویشن حاصل ہو گئی ہے۔ گورنر ستیہ پال ملک نے جموں و کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل 2014 کو منظوری دے دی ہے، جس کی روح سے پہاڑی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن ملے گی۔ اس ترمیم سے پہاڑی طبقے کے لوگوں کا الگ الگ زمرہ تشکیل پایا جائے گا۔ پہاڑی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی شناخت کے لیے حکومت الگ سے لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔ دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے پہاڑی طبقے کو سخت اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ سماج کے دیگر طبقوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اب انہیں باضابطہ طور پر ریزرویشن کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا۔ اور کل باضابطہ طور پر گورنر صاحب نے اس ریزرویشن بل کو منظوری دے دی ہے، اور اب ان کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی براہ راست اسی طریقے سے ملیں گی جس طریقے سے ریزرویشن میں دیگر لوگوں کو ملتی ہے، ریزرویشن کے دوران دیگر طبقہ فکر کے لوگوں کو ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ کلدیپ راج گپتا جی ہے، فارمر چیئرمین ہے پہاڑی بورڈ کے۔ لگاتار ان کی کوشش بھی رہی جب یہ چیئرمین بھی تھے، اور چیئرمین سے بعد بھی ان کی ذاتی کوششیں رہی ہیں اس حوالے سے۔ کلدیپ راج جی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ۔ گورنر صاحب نے کل رات دیر کے ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے، آپ کا پہلا ری ایکشن بحیثیت پہاڑی لیڈر کے؟ پہاڑیوں کو نوکریوں میں 3% ریزرویشن دینے پر گورنر شری ستیہ پال ملک اور بھارتی جنتا پارٹی کے راشٹری مہاسچیو شری مادھو رام جی کا میں دھنیہ واد کرنا چاہوں گا، اور کہا کہ پچھلے 40 ورشوں سے پہاڑی لوگ شانتی پوروک جدوجہد کر رہے تھے، لیکن کھیر کی بات ہے کہ سत्ता میں بیٹھے پچھلے 40 ورشوں سے جو سत्ता میں بیٹھے لوگ ٹال مٹول کر رہے تھے، اور کیندر میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہوتے ہوئے یہ موقع ملا ہے، اور ریاستی سرکار میں پہاڑی بورڈ کا وائس چیئرمین ہونے کے ناطے میرے سٹاف کی سخت محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ بند فائل جو یہاں پڑی تھی وہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب دلانے کے لیے اس فائل کو میں سوئم لے کے پردھان منتری شریمان نریندر مودی جی کے پاس گیا، اور ان کے سمکش 2016 آخر میں رکھی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم اس پر گہرائی سے ادھین کریں گے۔ تو اس سے میں پردھان منتری جی سے اپیل کروں گا کہ پہاڑی قبیلہ کے لوگوں کو سیاسی، سماجی اور اقتصادی طور پر یہ پچھڑے ہیں، اور یہ 70% لوگ جو ہیں یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مال مویشی اور بھیڑ بکری پالتے ہیں، تو ان کو شیڈول ٹرائب جو ہے ڈکلیئر کیا جائے۔ تو آخر میں تمام ان پہاڑی قبیلہ کو من کی گہرائیوں سے مبارک دوں گا کہ اب پہاڑیوں کو کم سے کم
ایک جگہ ملی ہے. کلدیپ صاحب آپ نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا 2014 میں اور اس سے پہلے بھی ایک طرف تو لوگ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے 3% ملا ہے، لیکن دوسری طرف ایک مانگ اور بھی ہے کہ کم سے کم یہ 5% ہونی چاہیے تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایس ٹی کا جو درجہ ہے وہ بھی ابھی باقی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے 3% ناکافی ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کیونکہ کم سے کم 5% ملنا چاہیے تھا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ کم سے کم پہاڑی لوگ کسی کھاتا کے اندر لگے ہیں. تو میں پردھان منتری جی سے انورودھ کروں گا کہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ اس پہاڑی خطہ کے اندر تینوں کمیونٹی ہیں، ہندو، مسلم اور سکھ. اور میں نے اٹل جی کے سمے یہ کہا تھا یہ ترنگا ہے، تو انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا تینوں کمیونٹی اس میں ہے. تو اس لیے میں کہوں گا کہ صحیح معنوں میں سیکولرزم کی پہچان بھی یہی ہے. میں آخر میں پھر پردھان منتری جی جو آتے ہیں 3 تاریخ کو، میں پریاس کروں گا کہ ان سے ملاقات ہو اور پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب جو ہے کو درجہ دیا. بہت بہت شکریہ کلدیپ راؤ، فارمر چیئرمین پہاڑی بورڈ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ گورنر نے ریزرویشن ترمیمی بل 2014 کو منظوری دے دی ہے. ہمارے ساتھ راجہ اعجاز علی پیپلز کانفرنس کے لیڈر بھی ہے اور اس جدوجہد میں ان کا بھی ایک بڑا رول رہا ہے. راجہ اعجاز علی صاحب، گزشتہ دنوں جب یہ بات سامنے آئی تھی پریس کانفرنس کے ذریعے تھے کہ گزشتہ دنوں میں پہاڑی اسپیکنگ لوگوں کے لیے ایک ریزرویشن کا اعلان ہو سکتا ہے، اس وقت بھی آپ کی طرف سے بات سامنے رکھی گئی تھی. آج 3% کوٹے کی بات ہو رہی ہے. کوٹا سیاست کے ذریعے سے کیا الیکٹورل پالیٹکس ہو رہی ہے، یا صحیح میں آپ مانتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ پہاڑی اسپیکنگ لوگوں کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے ہز ایکسلنسی گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ الیکٹورل پالیٹکس والی بات ضرور ہوتی کہ اگر اس وقت یہ سیاسی جماعتوں نے اس کو کسی نے ان کی گورنمنٹ کے ٹائم میں اگر یہ مسئلہ حل ہوا ہوتا. آج جب کہ میں مشکور ہوں ان تمام ایم ایل ایز کا جن لوگوں نے اس وقت اسمبلی میں بل پاس کیا، اور اس پارٹی کا بھی پی ڈی پی بی جے پی کا جنہوں نے اس وقت اس کو بل کو سامنے لایا، اور خاص کر اپنے اس وقت کے سوشل ویلفیئر منسٹر سجاد صاحب کا جنہوں نے اس کو پائلٹ کیا کہ یہ بل تیار ہوئی. لیکن ان میں اتنا انتھوزیازم نہیں رہا. بعد میں گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو ہم اپروو بھی کروا لیں، ایسنٹ بھی دلوا لیں اس سے راج بھون سے. اب جب کہ یہ پاس ہو گیا ہے تو اس کی 2-3 چیزیں جو ہیں جو میں سامنے لاؤں گا. اس میں جو کلدیپ راج جی کہتے تھے 3% یا 5% کا، اس میں کوئی ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کی جو بیسک ضرورت تھی اس ریزرویشن کی، وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو شیڈول ٹرائب کے لیے فائل ہے، کیس ہے، اس میں انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ٹیکنیکلی اپنی ساری جو چیزیں ہیں قانون کو پورا کر کے اس کمیونٹی کو سوشو اکانومک کا سروے کر کے اور اس کو ایک ایتھنک، سوشلی بیکورڈ، ایتھنیکلی آئیڈینٹی کر کے ایک گروپ وہ کرے. جو چیز اس وقت ہم فرسٹ ٹائم پہاڑی لوگ جو بکھرے ہوئے تھے جن کی پہچان نہیں تھی، تو اس آرڈر میں اس بل میں جو ہوا ہے ڈسٹنکٹ کلچرل، ایتھنک اینڈ لینگوسٹک آئیڈینٹی امنگ دی سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز. یہ آپ نے سنا نا جی؟ یہ جو ورڈ ہے اس سے ہماری ایک انڈیویجول پہچان ہو گئی، اور اس انڈیویجول پہچان کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ان لوگوں کا ایک ایتھنک گروپ اور یہ ان کی حالت زار کیا ہے. اب اس میں 3% ہو یا 5% ہو وہ اس وقت بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ یہ گروپ پہچان ہونے سے جو ایس ٹی کے لیے ہمارا کیس ہے اس کا ایک مائل سٹون، سنگ میل جو ہے وہ طے ہو گیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ہمیشہ کہتی تھی اس کو ڈیفائن کرو پہلے. اب وہ بن گیا ہے تو ہم بڑے مشکور ہیں ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. راجہ اعجاز صاحب ٹھیک ہے، مشکور ہے کہ جنہوں نے اس کو اپروول دیا. ٹھیک ہے راجہ اعجاز صاحب، اچھی چیز ہے اپروول آ گئی ہے، لیکن جب میں اس کوٹا سیاست کو اور کوٹے کے معاملے کو پورے ملک کے اندر دیکھتا ہوں، ریاست جموں کشمیر کے اندر دیکھتا ہوں، تو حالات بدلتی ہوئی کہیں پر نظر نہیں آ رہے. بیکورڈ آج بھی ہے، اور آج 21ویں صدی میں اور 2019 میں بھی ہم اپنے علاقوں کو بیکورڈ ڈکلیئر کروانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو کہاں پر ہماری وہ ویژن، نیا کشمیر، نئی پالیسی، سب کا ساتھ، وہ کہاں پر رہا پھر؟
देखिए, जो आरबीए का आपने कंसेप्ट बनाया था, स्टेट ने सेंटर वाला ओबीसी ट्यून अप ना करके आरबीए का अपना 27% जो रखा जी, लेकिन वो 27% की जब डेफिनेशन की तो वो 27% वहां से पहाड़ी इलाकों से, बॉर्डरों से, रिमोट एरिया से फैलते फैलते डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर तक पहुंच गया। इस वक्त गांदरबल भी आरबीए में है, चाडूरा भी आरबीए में है और अनंतनाग लोकल सिटी के टाउन के एरियाज आरबीए में है। जब इन लोगों को ये सारी रिजर्वेशन का कोई वो मतलब लिहाज ही ना रहे कि जिस बेसिक चीज के लिए ये एड्रेस किया गया था, तो नेचुरली उन लोगों को तो चांस ही नहीं मिला आगे आने का। जो एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी सिटी वालों को है वो बाहर अलग एरियाज को नहीं है, तो वो उनके साथ कम्पीट ही नहीं करते, तो वो कुदरती जॉब्स में नहीं आ सकते, जॉब्स में आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनको तो बेनिफिट ही नहीं मिला। बेनिफिट फिर भी जो हुआ उन सारी रिजर्वेशनों से वो लेके सिटी के और टाउनों के वाले जिनके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज थी। तो इस वक्त जो ये एक दे रखा है ये आइडेंटिटी के हिसाब से, मुझे लगता है कि इससे कुछ ना कुछ फर्क यहाँ भी जरूर पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजा एजाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गवर्नर ने रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2014 को कल रात देर के मंजूरी दे दी और पहाड़ी तबके को अब हासिल होगी खसूसी रिजर्वेशन। 3% कोटे की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट महमूद खान साहब पहाड़ी लीडर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महमूद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से गवर्नर साहब के इस बात को देख रहे हैं, और जिस तरीके से इससे पहले राजा एजाज साहब बोल रहे थे कि अभी शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हो चुकी है क्योंकि ये पहला कदम था जो उठाना स्टेट की तरफ से था, अभी एसटी बाकी है, अभी और मामले हैं जिन्हें तय करना है। किस तरीके से राजा एजाज साहब की बात को आप देख रहे हैं और गवर्नर साहब के फैसले को? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलिस्तान न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऑनलाइन लिया मुझे। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है पूरी पहाड़ी कम्युनिटी अक्रॉस द स्टेट। हम आपको मैं बताता चलूं कि जो भी पहाड़ी लोग थे, राजौरी पुंछ से लेकर कश्मीर के जो कुछ इलाके आते थे वो सोशली इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड लोग थे और कम्पीट नहीं कर पा रहे थे किसी भी जॉब में या किसी भी सिस्टम में आकर। तो ये इंतजामिया ने, गवर्नर इंतजामिया ने जो आखिरी ठप्पा लगाया है पहाड़ी को, एटलीस्ट हमें एक रिकॉग्निशन मिली है कि हम जो है इस लेवल पे पहुंचे हैं। जो भी आवाजें उठ रही थी कि पहाड़ी लोग जो है इस जिम्रे में नहीं आते हैं, लेकिन आज हम ये जो गवर्नर साहब ने कल ये जवाब दिया है कि नहीं, पहाड़ी सोशल इकोनॉमिकली इथानिकली जो है ये लोग इस जिम्रे में आते हैं और वाकया ही इन लोगों को मिलना चाहिए। ये तो बहुत वेलकम स्टेप है, मैं कहता हूँ। महमूद साहब, आप नौजवानों से जुड़े हैं, पीर पंजाल से लेकर उड़ी, कर्रा और जो दीगर तमाम कुपवाड़ा के इलाके हैं वहां तक आपकी लोगों से बात होती है, खासकर नौजवानों से। तो जो 3% मिला है, क्या ये काफी माना जाए? क्योंकि एसटी का दर्जा बाकी है। राजा एजाज साहब की बात हमने आपको सुनाई, अभी तो एक शुरुआत है। आप नौजवानों से सीधा जुड़े हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, नौजवानों का क्या रद्द अमल है? क्या उनमें एक और उम्मीद है, या जो 3% मिला है, जो 40 साल की लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो इसे एक राहत के तौर पे देखते हैं? बिल्कुल, मैं ये देखिए 3% काफी नहीं है। हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि उमर सरकार ने हमें 5% देने का वादा किया था। हमारी जो डिमांड थी वो 8% थी, लेकिन गत्ते 3% पे आई है। ये हमें एक वेलकम स्टेप में इसलिए कह रहा हूं कि हमें रिकॉग्निशन मिली है। हमने असली लड़ाई 8% के लिए लड़नी है। मैं तमाम उन नौजवानों को पीर पंचायत से लेकर उड़ी, करना, केकर, बारामूला और जहां कहीं भी पहाड़ी लोग हैं, शुपैया में, अनंतनाग में है, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अब हमें एक लॉन्चिंग पैड मिला है जिस लॉन्चिंग पैड पे आकर हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहाड़ी लोग, पहाड़ी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो प्रो इंडियन है और हमेशा हिंदुस्तान के हक की बात करती है, हमेशा बॉर्डर पर गोलियां खाती है और हिंदुस्तान का झंडा थामे रखती है। लेकिन पहाड़ियों के साथ कभी भी किसी ने इंसाफ नहीं किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं महबूबा मुफ्ती सरकार को और पीडीपी सरकार को, स्पेशली विबोध गुप्ता और रविंदर रैना साहब को, जिन्होंने स्पेशली ये बिल जो है इंट्रोड्यूस किया है और उसके बाद इसको दानू ऐवानू में पास करवाकर और फिर जब ये सर्द बस्ते में एनएन वोरा साहब ने काफी अरसे से जो इसको रखा था, आज जो है एक सत्यापाल मलिक जी ने, ऑनरेबल, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। मैं कहता हूं पहाड़ी जितना भी मैं कहता हूं उनका मुबारकबाद है वो उनके लिए कम है कि उन्होंने एक आखिरी मोहर लगाई है और हमें एटलीस्ट एक रिकॉग्निशन मिली है। और खासकर जो गुजर पहाड़ी भाइयों में एक इंतशार फैला रहे थे, जो लीडर वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे, हर बार पहाड़ियों को एक लालीपाप दे रहे थे कि हम आपके लिए काम करेंगे, वो काम सत्यापाल मलिक जी ने करके दिखाया
गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट महमूद खान साहब हमारे साथ बात करने के लिए। वोहरा NN वोहरा साहब जो 2 बार न कर सके वो सत्यपाल मलिक साहब ने कर दिया। पहाड़ी तबके को मुलाजमतों में रिजर्वेशन मिल गई है, बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं और इस पर रद्द-ए-अमल जो आ रहा है वो भी आपके सामने हमने रख दिया कि इस तबके से वाबस्ता लोग जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और क्या कुछ उनका मानना है। बात गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब की हो रही है और गवर्नर के एक और बयान को भी आपके साथ हम शेयर करते चले, क्योंकि कल गवर्नर साहब जम्मू के अंदर थे और जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर अखबारी नुमाइंदों के साथ भी कल गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने बात की, जहां इंतजामात पर वहीं पर जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात की और किलिंग्स पर जिस तरीके से कल उन्होंने अपना हाल सुनाया है, उसके बाद कौमी मीडिया से लेकर रियासती मीडिया ने उस बात को बड़े पैमाने पर लिया है। जिस तरीके से गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कल ये बात कही कि जब भी कोई किलिंग होती है तो उन्हें बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इंसान मारा जाता है और जरूरत यह है कि किसी न किसी तरीके से बंदूक का जो कल्चर है ये खत्म हो और सिर्फ मारने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि उनके जहन से और उनके दिमाग से इस नक्शे को उतारना होगा। एक बड़ी बात जो है उन्होंने कही है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि उन्हें बहुत तलख तजुर्बा जिंदगी का रियासत में आकर हुआ है और ये तलख तजुर्बा उनको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते करते हुआ है। सत्यपाल मलिक कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर एक मानी जानी हस्ती रह चुकी है। इससे पहले भी गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते सत्यपाल मलिक साहब का मानना है कि जो पिछले 50 साल में नहीं सीखा वो इन चंद महीनों के अंदर अंदर सीखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर इंतजामी अमूर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक लाने के लिए 4 से 5 महीने लगाते हैं, शायद मुल्क की और किसी रियासत में इस तरीके का हाल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पर कल काफी तीखी टिप्पणी उनकी तरफ से सामने आई है। उसके साथ साथ जो बात उन्होंने कही, उनका मानना था कि जरूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी न किसी तरीके से मुतहरिक हो और जो पॉलिटिकल पार्टियां लगातार कभी खतरे की बात करते हैं, कभी दूसरी बातें करते हैं, दरअसल उनको अपने हालात पर और मौजूदा सिस्टम पर नजर डालनी होगी और देखना होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से जो वो बातें बता रहे हैं वो सही है या गलत है। गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब लगातार इस बात को दोहराते हैं कि जिस तरीके से हालात को बयान किया जा रहा है, हालात उस तरीके के नहीं है, बल्कि सियासी जमातें सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सब कुछ कह रहे हैं। जंगजुओं की हलाकतों से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हर हिलाकत से मुझे दुख पहुंचता है। गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त इस पूरी बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं फॉर्मर IAS ऑफिसर और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन KB जंडियाल साहब। जंडियाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि कल आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, आपने भी उसमें बात कही है, लेकिन गवर्नर साहब ने जो 2-3 मुद्दों पर खुलकर बात की है, आपकी पहली रिएक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर और उसके बाद पॉलिटिकल बात भी करेंगे। देखिए, गवर्नर साहब ने हालांकि वो एक लाइटर वेन में बात की, क्योंकि ये जो रिएक्शन था जो बोलने जा गए थे तो वो उन्होंने प्रोफेसर अमिताभ मट्टू के जो लेक्चर था मीडिया पर और एथिक्स ऑफ मीडिया पर, उसी पे उन्होंने बड़ा एक कहा कि जो मैंने कहना था वो मट्टू साहब ने कह दिया। और उसने कहा कि मैं जब रियासत जम्मू कश्मीर में आया हूँ जब से, तो मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा और सीखा है, और अगर वक्त लगा तो मैं जब यहाँ से अगर रुखसत हो गई तो उसके बाद मैं किताब लिखूंगा, जबरदस्त किताब लिखूंगा। तो उन्होंने ये तंजिया ये कहा कि यहाँ पर तो करप्शन का बड़ा जोर बोलबाला है, और जो लोग कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, यहाँ जमहूरियत खतरे में हो नहीं सकती। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, एक बुद्धा जी की
गौतम बुद्धा की कि उन्होंने कैसे कहा, तो उसने कहा कि यहाँ पर 9 अवतार आए हैं और 9 अवतार आने के बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआ और यहाँ पर बहुत लोग खराब भी आए हैं। तो उन्होंने कहा हमारे खराब होने के बावजूद इसका और नुकसान हम कर नहीं सके मुल्क का। तो ये बातें चलती रहेंगी क्योंकि ये खतरा उन जाहिर है कि इशारा सियासतदानों पर था जो ये कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है। और ये तो उन्होंने कहा कि देश में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है और पूरे बड़े शरीर की बात क्या एशिया में बात कर लें तो जितना हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के रूट्स पनप रहे हैं उतने कहीं नहीं है और हमें किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। तो उन्होंने टारगेट इन डिफरेंट वे पॉलिटिशियंस को भी किया जो बड़ी लूज टॉक करते हैं कि मुल्क में ये हो रहा है, गलत हो रहा है, वो हो रहा है। और यहाँ पर कहा कि फाइलें हिलती नहीं हैं और करप्शन की बात में उन्होंने उस चीज का फिर उजागर किया कि मैंने 2 टेंडर जो थे मैंने करोड़ों रुपए के वो मैंने रद्द कर दिए, लेकिन मुझे एक ने भी शिकायत नहीं की। जितने लोग भी आए उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, तो ये तो पैसा ये लूट के खा जाते हैं। तो ये उनका मिल मिला के दोनों चीजों पे ये था कि वो जंडियाल साहब, क्या मैं गवर्नर साहब की इस बात को वार्निंग मानूं कि गवर्नर साहब ने कहा कि जो स्टेट के अंदर हो रहा है उनकी पूरी नजर है और अब कार्रवाई होगी? नहीं, वार्निंग की बात उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बट उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो हो रहा है उस पर मेरी नजर है और मैं कोई भी फैसला करने के लिए मैं कहीं घबराऊंगा नहीं। जैसे उन्होंने ये कहा कि मैंने 2 टेंडर कैंसिल कर दिए, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो उनका जिक्र यही था कि कोई भी हो अगर मुझे कहीं गलती नजर आएगी और मुझे लगेगा कि इसमें कोई धांधली है तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी कि मैं इमीडिएट उस पर एक्शन ले लूं। तो जंडियाल साहब, यहाँ पर ठीक बात है, गवर्नर साहब ने एक फैसला लिया, वो काफी सराहने वाला फैसला था, काफी बड़ा फैसला था, शायद और कोई नहीं ले सकता था। जी बिल्कुल, जो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस वाला मामला था और बड़ी कंपनी का मामला था तो शायद कोई नहीं ले पाता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 4 से 5 महीने लगते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल जाने में, तो क्या मैं गवर्नर साहब की बेबसी ये मानूं कि उनकी बात को भी नहीं माना जाता है? मैं खुद इंतजामिया में रहा हूँ और ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बातें कहने वाली हैं, इतना होता नहीं है जितना कि एक इम्प्रेशन बन जाता है। यहाँ जरूर है, रेटिज्म होता है और सरकारी दफातर में ये चीजें आमतौर पर होती हैं। जब तक उसको पुश ना किया जाए, उसके चेंज ना किया जाए तो फाइलें आगे चलती नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफी हद तक इम्प्रूवमेंट होती है और जब आप जो है ऐसे गवर्नर हो और जैसे एक्शन लेने की बात हो जहाँ रोज आपके एडवाइजर जो हैं वो काफी तेजी से काम करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा ज्यादा लगता नहीं है। बट फिर भी उन्होंने यही कहा कि फाइलें 3-3, 4-4 महीने पड़ी रहती हैं और उसके लिए उन्होंने करप्शन की बातें भी की और कहा कि यहाँ काफी कुछ मैंने देखा सीखा है। तो उसका मतलब यही था कि अभी भी काफी रेटिज्म होती है उनके मुताबिक। चलिए, बहुत शुक्रिया जंडियाल साहब हमारे साथ ज्वाइन करके बात करने के लिए। के बी जंडियाल साहब बात कर रहे थे गवर्नर साहब के दिए गए बयान पर कि तंजिया अंदाज में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। लेकिन गवर्नर साहब जब ये बात कहेंगे कि एक फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाने में 5 महीने लगते हैं, तो आम आदमी का हाल क्या होगा? अगर गवर्नर साहब के हुक्मनामे को 5 महीने लगते हैं इंप्लीमेंट होने में, तो आम लोगों की दरख्वास्तें 1 साल या 5 साल के बाद ही एक क्लर्क के बाद दूसरे क्लर्क तक जाती है। और यही वजह है कि एलिनेशन और एंगर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्यादा बढ़ता है। बहरहाल उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक हो और ये जो लैतुलैल वाला मामला है ये खत्म हो सके। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौसम का हाल क्या है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टेक्निकली बताएंगे। हमारे साथ इस जुड़ेंगे फोन लाइन पर एसएसपी नेशनल हाईवेज भी और हमारे नुमाइंदे भी। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।
मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। यूहो वास्ट प्लस बाय यूहो स्मार्टफोन्स। एंड्योरा मास की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। Upkarma Ayurveda brings you pure Shilajit in resin form. This really helped me and it works. Upkarma Ayurveda, pure Shilajit. Upkarma Ayurveda, balance your life. सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। This year marked the beginning of an era as gates of IDPS opened to cater the needs of our valued city. We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and their parents who strongly reposed their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to their parents, staff and students for their continuous support. ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में। और सलाम जेके में अब जरा हम बात करेंगे मौसम के मिजाज के हवाले से, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में जहां हल्की बर्फबारी हो रही है वहीं पर बारिशों का सिलसिला भी जम्मू के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से अबूर मरूर पर यानी आमदरफ्त पर काफी फर्क तो पड़ा ही, लेकिन श्रीनगर जम्मू शहरा पिछले 4 दिन से मुसलसल बंद है और आज 5वां दिन है। और अभी तक जो हमारे पास एदाद शुमार आ रहा है वो ये है कि शायद आज भी श्रीनगर जम्मू शहरा पर आमदरफ्त बहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि कई मकामात पर कल रात देर गए भी पसियां जो है वो गिराई हैं और पसियां गिराने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो रोक दी गई है। बानिहाल से रामबंद तक कई इलाकों में बड़े पैमाने पर चट्टानें और पसियां गिराई हैं। नासाजगार मौसम की वजह से शहरा से पसियां हटाने के काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो ही मौसम बेहतर होगा तो हंगामी बुनियादों पर काम भी किया जा सकता है। लेकिन कल एक सड़क का दिलदोज हादसा भी पेश आया है इसी कौमी शाहरा पर, जिसमें पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो बुरी तरह से पहले जख्मी भी हुआ है। इस तरीके की खबर जो है हमारे पास आ रही थी। और उसके साथ साथ अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ के अंदर भी बर्फानी तूदे की जद में आकर कई इमलाक का नुकसान होने की खबर जो आ रही थी, क्योंकि वहां पर पाडर के मकाम पर जिस तरीके से लंगर और मच्छिल यात्रा के सिलसिले में जो अरेंजमेंट्स होते हैं और जो वहां पर ज़ायरीन जाते हैं उनके लिए जो आर्जी लंगर वंगर बनते हैं उसको कल नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, क्योंकि एवलांच की खबर जो थी वहां से आई थी। कल हमने आपको बताया था कि कुपवाड़ा में भी लोलाब के एरिया में एवलांच के दौरान 2 लोगों के
गायब होने की इतला मिली थी, बाद अज़ा मालूम हुआ कि वो 2 लाशें भी जो है वो वहाँ से बरामद हो गई है। और इस तरीके से लगातार मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है और मौसम के बदलते मिजाज के साथ साथ आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, स्पेशली उन लोगों को जो जम्मू में दरमानदा है। जम्मू में तकरीबन 3 से 4 हज़ार के लोग वो इस वक्त दरमानदा है। और जम्मू होटल्स की बात करें, जम्मू बस स्टैंड की बात करें तो ओवर क्राउडेड अब ये हो रहा है, क्योंकि पूरे मुल्क से जो लोग जम्मू कश्मीर की ओर जाना चाहते हैं उन्हें जम्मू स्टेशन पॉइंट है और इस वक्त जम्मू के अंदर काफ़ी ओवर क्राउडेड जैसा माहौल जो है वो बना हुआ है। इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू हाईवे की जहां तक हम बात करें, जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और बिगड़ते मौसम के बीच पहाड़ी इलाकों में चट्टानें जो खिसकने का सिलसिला भी तेज है और उस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को एहतियातन बंद रखने के अहकामात भी जो है वो सादिर कर दिए गए हैं। लेकिन जम्मू में क्या कुछ मुसाफिर कह रहे हैं, जरा पहले वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद रामबन चलेंगे। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और संजीव खजूरिया साहब एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवेज भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि पूरा अपडेट आपको बताते चले कि क्या कुछ है। लेकिन जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है उन लोगों की जो दरमानदा है पिछले कई रोज से, इंतजामी अमूर चलाने वाले लोग क्या कुछ कह रहे हैं और जो लोग वहां पर ठहरे हैं, जो रुके हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के लिए आना है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुन लेते हैं। हम बंद थे तो हमें मतलब सिर्फ इतने ही पैसे थे जितने मतलब खर्चा आना चाहिए, लेकिन हमें 6 दिन से बंद थे। यहाँ जो पैसा हमारे जेब में था वो सब खत्म हो गया। हम तो मुसीबत में फंसे हुए हैं। यहाँ जब 2014 में बाढ़ आया कश्मीर में, उस वक्त फटाफट गवर्नमेंट ने बंगाली बिहारियों को उठाया जहाज से और पहुंचा दिया अपने अपने घरों को, और हम यहाँ फंसे हुए हैं मुसीबत में। कोई इंतजाम नहीं गवर्नर साहब कर रहा है। शान मैं कुलगाम से रहने वाला हूं और 19 तारीख से हमको यहाँ फंसे हुए हैं। फैमिली तो छोटे बच्चे हमारे बिल्कुल मेरे पास बच्चे भी है और फैमिली वाला हूँ यहाँ पर। जो हमारे पास जेब में कुछ पैसे थे तो वो भी खत्म हो गए। तो अब हम ये पहली बार तो रास्ता बंद तो नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुए हैं। तो अगर गवर्नर साहब पीछे देखे तो बहुत टाइम पर यहाँ पर एयरलिफ्ट किया गया है। अगर लोगों को अगर उनको लग रहा है कि रास्ता खुलने का कोई चांस नहीं है, अब ये कहेंगे कि हम यहाँ कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कमरे की इंतजाम नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कर नहीं सकता है। अगर उनको करना था तो वो किए हुए। तो अब हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर उसके पास कुछ है तो यहाँ से एयरलिफ्ट करेगा, ताकि इन बच्चों को, खासकर जो स्टूडेंट और बीमार लोग हैं, आप देखिए यहाँ पर अंदर देखिए सड़क पर बीमार लोग बैठे हुए हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही हैं, कल पूरे दिन की तस्वीरें हैं रामबन के बैटरी चश्मा में, जहां लगातार जो पसियां गिरने का सिलसिला है वो जारी है और आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से रह सकता है, क्योंकि बर्फबारी जो ऊपरी इलाकों में पड़ी है उसके बाद मिट्टी इन इलाकों की काफी नरम हो गई है। कल भी हमने आपको जिस तरीके से आईजीपी साहब से उनकी बात सुनाई थी, और साथ ही साथ उधमपुर में करीब 1000 ट्रक जो फंसे हैं उनके ड्राइवर्स, और साथ ही साथ रामबन में कुछ बच्चे जिनको मस्जिद में रखा गया था, और जो सड़कों पर लोग फंसे हैं उनका ये कहना था कि उन्हें कमरे लेने में भी तकलीफ हो रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी दी जा रही हैं। और जम्मू बस स्टैंड जहां से अभी हमने आपको सुनाया, इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काजीगुंड की है। कल की जो टूरिस्ट बाहर से गए थे, ये काजीगुंड में कुछ जो सयाह हैं वो फंसे हुए हैं, और जम्मू बस स्टैंड पर 3 से 4 हजार लोग जो कुलगाम, गांदरबल, शोपियां और अलग अलग अजला से जो फंसे हुए हैं, और उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से कल अपील की थी कि अगर और कुछ नहीं हो सकता तो एयरलिफ्ट करके किसी तरीके से उनको कश्मीर के लिए रवाना किया जाए। पिछले 6 दिनों से हम ये सिलसिला लगातार देख रहे हैं और 1 हफ्ता करीब खत्म होने वाला है, और इस पूरे हफ्ते में लगातार जो तादाद जम्मू बस स्टैंड पे है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में होटल मालिकान को भी परेशानियां जरूर उनका सामना है, क्योंकि जो यात्री है वो करीब 5 से 6 हजार होते जा रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों के लिए वहां ठहरना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि खाने पीने की तमाम चीजें वो वक्त पे नहीं मिल पा रही, और अगर कोई चीज मिल भी रही है, हमने 2 दिन पहले भी आपको सुनाया था कि तमाम चीजें जो है वो महंगी दी जा रही। चलिए, हमारे साथ नदीम इकबाल इस वक्त रामबन से ज्वाइन किए हुए हैं, जरा इनके पास चलते हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि बानिहाल के पास और टनल के आसपास हल्की बर्फबारी एक बार फिर शुरू हुई है। नदीम, सबसे पहले अपडेट जो हमारे नाजरीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ मौसम का मिजाज है और पसियां कहां पर गिराई हैं? जी गौहर साहब, सबसे पहले अगर हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें और मौसम की बात करें, तो अगर मौसम की बात करें, अभी जवाहर टनल और बानिहाल में जो है बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है।
अगरचे कल कुछ मौसम में थोड़ी बहुत बेहतरी देखने को मिली थी, लेकिन अगर अभी की बात करें तो मौसम ने फिर से करवट बदली। और रामबन की बात करें, यहाँ पे भी अभी बारिश जो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर अगर हम पत्थर आने की बात करें या फिर पसियां गिरने की बात करें तो कल पूरे दिन ये सिलसिला चलता रहा, चाहे वो डिगडोल हो, गांगरू हो, और जो सबसे बड़ी पसी जिसे हम माने अभी अनोखी फाल में, जो कल सुबह से ही वहां पे शूटिंग स्टोन्स हो रहा है और अभी भी वहां पे सिलसिला चल रहा है, जिस वजह से वहां पे क्लियरेंस का काम करना काफी मुश्किल हो गया है। और अगर शूटिंग स्टोन्स की बात करें तो कल एक ट्रैफिक एएसआई अजय खोखर जी हैं, वो जख्मी हुए पत्थर लगने से, और एक दूसरे जो सिविल थे मुकेश राजस्थान से जिनका ताल्लुक है, उन्हें भी पत्थर लगने की वजह से वहां पे वो भी जख्मी हो गए। तो ये कंडीशंस जो वहां पे बनी हुई है जिस वजह से क्लियरेंस का जो है काम वो शुरू नहीं किया जा सका है। और अगर हम दरमांदा मुसाफिरों की बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आज 5वां दिन है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो बिल्कुल बंद है, लेकिन जो दरमांदा मुसाफिर है उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कल की हम बात करें तो कल जो दरमांदा मुसाफिर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं, और जो मुसाफिर हैं उन्हें मुसलसल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ट्रैफिक इंतजामिया की हम बात करें, ट्रैफिक गिरा रही है और पस्सियां गिराने की सूरत में कल हमने देखा कि कुछ लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश की और जानी नुकसान पहुंचा, वहां माली नुकसान भी पहुंचा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जितना सख्त है, ये तो लाजमन है कि किसी को इस तरीके से आगे जाने की इजाजत ना दे, क्योंकि हालात उस कदर बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से हम बात करें ट्रैफिक इंतजामिया के दावे किए जाते हैं कि किसी भी गाड़ी को जम्मू से उधमपुर से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है या काजीगुंड से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब हम जमीनी सतह पर नजर दौड़ाते हैं तो वहां पे हाल जैसा है वो बिल्कुल, अगर हम रामबन और बानीहाल के बीच की बात करें तो ट्रैफिक हुकाम का ये कहना है कि किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर अभी जो अनोखी फाल और रामबन के बिटवीन का जो सेक्टर है, अगर उस पर हम नजर दौड़ाएं तो उस पर गाड़ियां चल रही होती है और स्टोन फॉल जो है वहां पे होता है। और अगर अभी मौसम खराब हुआ है, मौसम ने करवट बदली, तो इस दौरान जो है वहां पे काफी ज्यादा पत्थर गिरना और पस्सियां गिरना एक मामूल बन जाता है। ये इस स्ट्रेच में इस वक्त खराब मौसम में गाड़ी चलाना किसी खतरे से खाली नहीं, लेकिन ये जो है इंतजामिया की कहीं न कहीं से कमजोरी माना जाएगा, जिस वजह से कल एक तो ट्रैफिक ऑफिसर को पत्थर लगा और दूसरा जो मुकेश है जो सिविलियन है राजस्थान से जिनका ताल्लुक है, तो उनको भी पत्थर लगा है, वो भी जख्मी है। तो इंतजामिया को एहतियात बरतनी चाहिए ताकि दूसरा कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए। साहब बने रहिए, दोबारा आपके पास आऊंगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ संजीव खजूरिया साहब एसएसपी नेशनल हाईवे ट्रैफिक भी जुड़ चुके हैं। संजीव खजूरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जो सिचुएशन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं और आज 5वां दिन लगातार बंद है, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि हल्की बर्फबारी एक बार फिर शुरू हुई है और शूटिंग स्टोन्स का क्या हाल है? सर वेरी गुड मॉर्निंग। कह ही रहे हैं कि 4-5 दिनों से बंद पड़ा है, तो ये फ्रेश लैंडस्लाइड्स अभी भी कंटिन्यू है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मरोग एरिया है हमारा, तो अभी जस्ट फ्रेश लैंडस्लाइड हुए, जस्ट कोई 10 मिनट पहले जी। तो ये जो अपना शूटिंग स्टोन वाला प्रोसेस है ये कंटिन्यू है, लैंडस्लाइड्स कंटिन्यू है, और जो लो रेनफॉल है वो कंटिन्यू है, और जो स्थिति है वो एज सच बनी हुई है। ये चीज जानना चाहूंगा खजूरिया साहब, जो मामला अभी पिछले 5 दिन से चल रहा है, लेकिन हमारे पास जो खबर आ रही थी कुछ लोग जबरदस्ती इस शाहरा पर चलने की कोशिश करते हैं, इस हाईवे पर चलने की कोशिश करते हैं। कल हमने देखा एक स्कॉर्पियो भी हादसे का शिकार हुई। उन लोगों के लिए क्या एडवाइजरी आपकी तरफ से है? सर ये जो हमारा लैंडस्लाइड वाला एरिया है ये थोड़ा सा स्ट्रेच है जो 10 किलोमीटर के करीब है, यहाँ तो हम कोई भी मूवमेंट नहीं होने दे रहे हैं। बाकी ये जो स्कॉर्पियो की आप बात कर रहे हैं ये संगलदान एरिया है, वहां तो गाड़ियां आ जा सकती हैं, वहां कोई फ्री मूवमेंट है वहां, तो वो उसके अपने नेग्लिजेंस या क्या हुआ होगा उसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है, इससे लैंडस्लाइड से उसका कोई लेना देना नहीं। ये खबर भी आ रही थी, कल हम देख रहे थे कि क्रॉस करते हुए लैंडस्लाइड जो आया था उस वजह से उन पर पत्थर गिरा, वो जख्मी हुए, जिनमें आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एक एएसआई भी शामिल है। तो वहां पर क्या नेग्लिजेंस में ये मानूं या नहीं? देखिए जो ट्रैफिक के लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है तो अपनी सुपरविजन में हम करवा रहे हैं कि कोई सिविलियन या कोई आम लोग वहां पे ना पहुंचे। तो ये एक रिजल्ट है कि हमारे लोग वहां पे थे और वो पत्थर हमारे ट्रैफिक के जो जवान है उसके ऊपर गिरा है, किसी सिविलियन पे नहीं गिरा है।
ٹھیک ہے, تو سنجیو جی کیا ایکسپیکٹ کر کے موسم آج بہتر ہوتا ہے تھوڑا سا, کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ آج دوپہر کے بعد تھوڑی سی بہتری موسم میں ہو سکتی ہے, تو کتنا وقت اور لگ سکتا ہے سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کو تھرو ہونے میں؟ دیکھیں اگر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے, جو سب نیچرل ڈیزاسٹر چل رہا ہے, لینڈ سلائڈ کب رکیں گے, شوٹنگ سٹون کب رکیں گے, اس میں میں کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گا. اگر یہ سب چیزیں سٹاپ ہو جاتی ہیں, ہم 5 سے 6 گھنٹے میں نیشنل ہائی وے اوپن کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. بات کر رہے تھے سنجیو کھجوریا صاحب, جو ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی ویز تھے, کہ شوٹنگ سٹونز ہیں اور جس طریقے کا ماحول بنا ہے اس میں کوئی بھی وہ جوخم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں, اور جب پورا بہتر ہوگا اور انہیں لگے گا کہ آگے ایسی واردات نہیں ہوگی, اس کے بعد ہی سری نگر جموں ہائی وے پر ٹریفک کو آنے جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی. تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کل دن کی تصویریں ہیں کہ کس طریقے سے موسم تھوڑا سا بہتر تو ضرور آپ کو دکھے گا, لیکن شوٹنگ سٹونز کس طریقے سے مختلف مقامات پر آ رہی ہیں, یہ تصویریں براہ راست آپ سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کی دیکھ رہے ہیں. فی الحال خبر یہ ہے کہ ہلکی برف باری ایک بار پھر ہوئی ہے, جس کی وجہ سے فی الحال 5ویں روز بھی ابھی تک سری نگر جموں ہائی وے بند ہے اور کسی گاڑی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مروگ میں اب سے پہلے جو آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا ہے, قریب 10 منٹ پہلے ایس ایس پی صاحب نے بتایا کہ مروگ علاقے میں ایک بار پھر پسی آنے سے دوبارہ جو ہے وہاں کام شروع کیا جائے گا. کل بھی ایک بار وہاں پہ ٹریفک کا جو سسٹم ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن جو بار بار سٹون شوٹنگ پتھر گرنے کا سلسلہ تھا وہ تھم نہیں رہا تھا, اور آج صبح ایک بار پھر لینڈ سلائڈ ہونے سے مروگ علاقے میں نیشنل ہائی وے پر جو یاتایات ہے, ٹریفک ہے, وہ دوبارہ موسم کے مزاج کے ساتھ ساتھ ذرا آپ ان لوگوں کی بھی بات کریں. جموں کی ہم نے بات کی جو لوگ درباندہ ہیں, لیکن جن بچوں کو امتحانات ہیں, سی میٹ اور گیٹ کے امتحانات ہونے جا رہے تھے اور یہ 28 تاریخ کو جموں کے اندر سینٹر بنایا گیا ہے. جن سری نگر کے بچوں کو جموں آنا ہے, سری نگر جموں قومی شاہراہ بند ہے اور ایئر فیئر آسمان چھو رہا ہے. اس بیچ طالب علموں اور والدین کی طرف سے گورنر ستیہ پال ملک سے اپیل کی گئی ہے کہ اس امتحان کو یا تو مؤخر کروایا جائے, اور اگر مؤخر نہیں ہوتا ہے تو ایک ہنگامی بنیادوں پر سینٹر سری نگر کے اندر قائم کیا جائے, تاکہ یہ جو سیمیٹ اور گیٹ کے امتحان ہے یہ سری نگر کے اندر بھی ہو سکے. فی الحال سینٹر جو ہے وہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی طرف صرف جموں کے اندر رکھا گیا ہے, اور جن طالب علموں نے ایگزامینیشن کے لیے آنا ہے وہ راستہ بند ہے فی الحال, اور کب راستہ کھلے گا کوئی کلیئر بات سامنے نہیں آ رہی ہے, کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق پھر ماحول جو ہے, موسم جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے. ایئر فیئر آسمان چھو رہا ہے. اس بیچ طالب علموں اور والدین کی طرف سے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی گئی ہے کہ ایک مرکز کو سری نگر کے اندر بھی نامزد کروایا جائے, تاکہ سری نگر کے طالب علم جو ہے وہ اس امتحان کو دے سکے. اہم بات ہے جو بات ہم تک پہنچائی گئی تھی سوشل میڈیا اور ہمارے ساتھ رابطہ کر کے کچھ بچوں کی طرف سے, یہ بات ہمیں امید ہے کہ گورنر انتظامیہ اس بات کا سنجیدہ نوٹس لیں گے. جی چلیے اب بات کرتے ہیں پونچھ ضلع کی. سیماورتی پونچھ ضلع سرنکوٹ کا ایک ایسا علاقہ, آپ جانتے ہیں کہ کل 26 جنوری ہے اور آنے والے کل یوم جمہوریہ کے موقع پر الگ الگ جگہوں پہ تقریبات کا انعقاد ہوگا. اس کے لیے بیتے کل تمام علاقوں میں, تمام اضلاع میں جو ہیڈ کوارٹرز تھے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اور یہاں تک کہ تمام کیمپس جو ہیں وہاں پہ بھی فل ڈریس ریہرسل ہوئی, اور آخری دن تھا فل ڈریس ریہرسل کا, کیونکہ ٹھیک ایک دن پہلے اس ڈریس ریہرسل کو انتم روپ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آج کے دن دوبارہ تیاریاں شروع ہوگی. تو کل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سرنکوٹ, جہاں پہ کل دیگر تمام اسکول اور کالجوں کی طرح تقریب کی جا رہی تھی, اور اسی تقریب کے دوران ایک بھول کہیں یا لاپرواہی کہیں, پچھلے سال بھی ہم نے اسی طریقے سے ایک اسکول میں دیکھا تھا کہ جو نیشنل فلیگ ہے, پرچم کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا, لیکن اس بار جو کل اسکول میں دیکھنے کو ملا وہاں پہ نیشنل فلیگ ہونے کے بجائے اسکول کا فلیگ لہرایا گیا. اور یہ اگر بچوں کی بات کریں ان کی موجودگی میں نہیں, یہاں پہ پولیس کے آفیسرز تھے, نائب تحصیلدار تھے, سول انتظامیہ کی جو سینئر آفیسرز تھے, ان کی موجودگی میں اس طرح کی بات سامنے آئی ہے, اور تصویریں بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تصویریں تھوڑی دیر میں ہم آپ اپنے ٹی وی اور موبائل سکرین پر تھوڑی دیر میں وہ تصویریں دیکھیں گے جو کل فلیگ لہرایا گیا, جو بلو کلر کا جو جھنڈا لہرایا گیا دراصل وہ نیشنل فلیگ نہیں, اسکول کا فلیگ, اور آخری جو تیاریاں کی جا رہی تھی.
चलिए बात जरा सुरनकोट की हम बता रहे हैं, जहां से यह खबर है कि फुल ड्रेस रिहर्सल परेड के दौरान कौमी तिरंगा नहीं लहराया गया, बल्कि एक ब्लू कलर का फ्लैग लहराया गया, जिसे कहा जा रहा है कि ये स्कूल का फ्लैग था। और इस मौके पर एसडीएम साहब जो थे वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां पर थे, लेकिन परेड पर सलामी जो थी वो एसडीएम के बजाय नायब तहसीलदार साहब ने ली थी। अच्छी बात है, फुल ड्रेस रिहर्सल परेड होनी चाहिए, लेकिन लगातार इस एरिया से इस तरीके की खबर जो है वो लगातार आती है हर साल, जिस तरीके से आसिफ बता रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग सर, हमारे साथ बात करने के लिए। कुरैशी साहब, जिस तरीके की खबर हम बता रहे हैं कि कल फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हर जगह पर हुई, सुरनकोट के बॉयज हायर सेकेंडरी में भी हुई, लेकिन बजाय तिरंगे के खबर यह है कि एक ब्लू कलर का फ्लैग वहां पर लहराया गया। क्या मैं इसे टेक्निकल फेलियर मानूं या कुछ और चीजें? सलीम कुरैशी साहब, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी 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 सर। कुरैशी साहब, ये जानना चाहूंगा कि ये टेक्निकल फेलियर था या कुछ और? सर, ये ऐसे है कि मुझे जो बताया गया स्कूल से, ये बताया गया कि ड्यूरिंग ये जो है फुल ड्रेस रिहर्सल ये स्कूल का तिरंगा ही लहराते हैं, इससे पीछे भी लहराते आए हैं। जी सर। कुरैशी साहब, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वहां पर एसडीएम साहब है, तो क्या एज पर लॉ ऑफ द लैंड ये अलाउ किया जाएगा कि जब रिपब्लिक डे की परेड हो, आप फुल ड्रेस रिहर्सल परेड करवा रहे हो, कल यौम जमहूरिया हो, आप तिरंगे का लहराना है, तिरंगे की परेड लेनी है, वहां पर तिरंगे के जगह ब्लू कलर का कोई फ्लैग लहराए, चाहे वो स्कूल का ही हो, क्या ये एज पर लॉ ऑफ द लैंड अवेलेबल कोई है, कोई प्रोविजन क्या ऐसा हो सकता है? सर मैं इसमें देख लेता हूँ, अगर किसी भी मुलाजिम की इसमें गफलत होगी, अगर ये पीछे भी करते रहे हैं, मैं देख लूंगा। अगर किसी भी मुलाजिम की गलती होगी तो उसके खिलाफ ये पूरा एक्शन होगा सर। सलीम साहब, सुरनकोट जो है परचम के हवाले से, तिरंगे के हवाले से पिछली बार भी सुर्खियों में रहा था एक स्कूल में, लेकिन वहां पे बताया गया, बाद में ये हवाला दिया गया कि बच्चों से भूल हुई, उल्टा झंडा जो है वो लहराया गया। इस बार जो हुई है इसे हम भूल कहें या अवेयर करने की जरूरत है स्कूली बच्चों को, क्योंकि बार बार इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी कल देखा, जहां जहां तकरीबात हुई वहां नेशनल फ्लैग ही होना जरूरी है। जी सर, इसमें मैं इंश्योर करता हूं कि ये मैं देख लूंगा, जिसकी भी गलती हुई उसको मैं अच्छे तरीके से सरदर्श करूंगा, तो आंदा से इस किस्म की गलती बिल्कुल नहीं होगी, मैं अश्योर करता हूं सर। बहुत शुक्रिया एसडीएम सुरनकोट मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ ज्वाइन करके ये अश्योर कराने के लिए कि तहकीकात भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, और इंक्वायरी में जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। देखना है कि क्या कोई लॉ परमिट करता है कि तिरंगे की जगह आप ब्लू कलर का फ्लैग या स्कूल या कॉलेज का फ्लैग होस्ट करें उस दिन जब यौम जमहूरिया की तकरीब होने जा रही हो, फुल ड्रेस रिहर्सल परेड हो, और उस पर सल्यूट लिया जाए, न सिर्फ बच्चों की तरफ से बल्कि दीगर एजेंसीज के लोग, जो सिक्योरिटी की एजेंसी के लोग भी वहां पर थे, उनकी तरफ से भी। तो चलते चलते अब जरा बात करते हैं रियासी की। हम आपको बता देते हैं, जिस तरीके से पंचायती इंतखाबात के बाद तमाम जो जम्मू खित्ते के जितने भी सरपंचीज थे उन्होंने हलफ उठाया था गवर्नर साहब की मौजूदगी में, जम्मू में गुलशन ग्राउंड में कुछ देर पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था उस दौरान, और उसके बाद तमाम अजला में जो 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए गए थे, और इन सरपंचों को जितनी भी जिम्मेदारियां हैं जो सरकार की तरफ से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है रूरल और बैकवर्ड एरियाज के लिए, उनसे उनको आगाह कराया गया, और किस तरीके से लोगों के बीच में ये स्कीम्स पहुंचानी है उसे लेकर इन लोगों को जो है अहम जानकारी फराहम की जा रही थी। और रियासी में भी दूसरे तमाम अजला की तरह जो है कल सरपंचीज ने एक बार फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद अपनी शिकायत मीडिया के सामने की, और 2500 जो माहाना इनको तनख्वाहें दी जाती है, सरपंचीज का मानना है कि ये उनके लिए बहुत कम है और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा दी गई हैं। और साथ ही साथ रियासी में हमने देखा है कि सलाल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और वहां पे लेबर की काफी ज्यादा जरूरत है, तो इन सरपंचों का मानना है कि मनरेगा के तहत जिन मजदूरों को 186 रुपए और या 200 रुपए जो कारीगर हैं उनको पर डे दिया जाता है वो उनके लिए काफी नहीं है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सलाल पे काम ज्यादा है, लेबर कम है, ऐसे में मजदूर करना उनके लिए मुश्किल रहता है।
चलिए चलते चलते जरा प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हुआ चाहता है। चलते चलते आपको खेल दुनिया की खबर बताते चले कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नई दिल्ली की तरफ से विंटर स्पोर्ट्स गेम गुलमर्ग के अंदर करवाने का ऐलान कर दिया गया और माना जा रहा है कि मार्च के एंडिंग में कोंगडूरी के अंदर, गुलमर्ग की कोंगडूरी के अंदर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होगा। इससे पहले 2014 में भी यह फेस्टिवल हुआ था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर सयाह जो थे वो वहां पर आए थे और अब 2019 मार्च के अंदर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल वहां पर होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे दी है। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ इस वक्त बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं, इसी उम्मीद के साथ कि कल होगी मुलाकात। गर खुदा लाया, अल्लाह हाफिज।